Good evening and Assalamu alaikum everybody. Jai Gurudev to everyone. A big welcome to all of you on this session of Patanjali Yoga Sutras commentary by Shri Shri Ravi Shankar ji. सभी लोगों को स्वागत है. तो पहले दिन पे ही the essence of the crux of the definition of yoga हमने देखा. It is very very beautiful. Quite unlikely what we imagined. हम समझते योगा यानी आसनास, बेंड करना, स्ट्रेच करना, लेकिन ये छोटी बात है. सबसे important thing what we learned is what yoga माने क्या, उसका definition क्या है? दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, abiding in the seer, वरना वृत्ति स्वरूपे इतरता. अगर हम दृष्टा में नहीं है तो फिर क्या हो जाता है? हम वृत्तिज में we getting caught up over there. So first thing we learned was the importance of being in the seer. हम देखते सीनरी तो बदल रहा है, getting into the seer, that's it. And then Guruji goes on to say that yoga, next day he tells us like, a little bit about what these vrittis are. ये वृत्तिस क्या है? तो 5 वृत्ति बताए हमें क्या है. प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, स्मृति और निद्रा. तो प्रमाण में भी 3 प्रकार के प्रमाण है ना. So just for us to be aware that what is happening to us to the mind. So when we are not in the seer, where are we? We are caught up in these 5 vrittis. Yeah. And then the third day he gave us knowledge on knowledge. What really is knowledge? और बताते हैं योग का मार्ग क्या है. योग का मार्ग केवल ज्ञान नहीं है, विस्मय होना. Going into that state of wonder, going into that state of astonishment, Guruji goes on, that is really yoga. So third day was like, far more bewildering. Okay, अभी तक तो ये पता था, अच्छा पता है कि मन दौड़ता है, पता है मन सीनरी में है, पता है सियर में जाना चाहिए. अच्छा, ये 5 चीज में अटका हुआ है. पर यहाँ पर हमें पता चला है, जब हम निश्चय हो जाते हैं कि मुझे ये ज्ञान है, मुझे ये पता है, वो विस्मय हमसे दूर भागता है. और योगा माने क्या? ये विस्मय. ये सियर में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? विस्मय चाहिए. Right? I am hoping that all of you are on the same page with me. Yeah. So हमें बार बार क्या करना है? Do you realize your best experiences with your best friends or with somebody's what is those moments where we were astonished by them? If you even remember your best movie, it will be that movie which really took you in a state of wonder. पता है लोग just for this one thing. You know what is the joy of all the extreme sports in the world? Sorry, all the extreme sports like the Formula One. People are driving at 350 kilometers per hour. Why? State of wonder. Why people are jumping from mountains? पहाड़ों के ऊपर या एरोप्लेन से जाके स्काई डाइविंग कर रहे हैं या बंजी जंपिंग कर रहे हैं. Why? That state of wonder. It is that state where yoga is happening to us. It is not about accumulating knowledge. So क्या बताते हैं गुरुजी वहां पर हमें कि the knower is far greater than knowledge itself. So again and again, all different ways, yoga is to remind us about the knower, about the drishta, about coming back into the seer. अच्छा, और ये जो seer है, ये जो drishta है, it is a very dynamic force. It has all solutions, there are answers, it is a visionary, it is full of intuition. It is not a passive thing, यानी खाली seer है, अब देख रहा है, ऐसा नहीं. To participate from the level of the seer is like participating from the top level. From top where you have a clear view of what is happening, where it is going, how to guide it, how to lead it. Yeah? Okay, anyway. फिर that was day 3. फिर day 4 पे फाइन, ये तो अभी पता चला. नाउ ये नॉलेज का भी पता चला हमें. चलो, ये निश्चय होने से काम नहीं बनेगा, ये विस्मय होने पड़ेगा हमें. तो फिर बताते अब कैसे करेंगे, कैसे आ जाए दृष्टा की तरफ, कैसे वृत्तियों को पार लगाए. Then he gave us few tips. Yeah, he told us what we need is abhyasa, and then along with abhyasa we also need vairagya. So what really is abhyasa? All those practices. और गुरुजी कहते हैं अभ्यासा की हमें आदत डालना है, ये दृष्टा के तरफ आने का हमें आदत डालना है. तो इससे all those practices that we are doing to go back into the seer. Guys, I want you to be able to connect the dots from day 1. वो दृष्टा स्वरूप से आपको यहाँ तक अभ्यास तक
कम से कम सब हमें को डॉट्स कनेक्ट करना है। ये बार बार जब हम जाते हैं उसके अंदर, बार बार अगेन एंड अगेन, आप क्रिया के जरिए से जाते हो, मेडिटेशन के जरिए से जाते हो, कोई चीज देख के जाते हो, आप कुदरती कोई चीज देखते हो। हैव यू नोटिस्ड व्हेन यू सी समथिंग ब्यूटीफुल, जब कोई अच्छा चीज देखते हो, ऑटोमेटिकली व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम आउट? ओह माय गॉड। ये गॉड ही हमें याद आ जाता है। Oh, I'm yeah, oh Subhanallah, oh my God, oh this is so beautiful, oh Jesus Christ. If you want to, अगर आप किसी को वो कल हम एग्जाम्पल भी दे रहे थे ना, वो सर्जन का, आप एक सर्जन के पास जाते हो, देखते हो सर्जन के क्लिनिक में गिटार रखा है, ओह माय गॉड, यू विल नेवर फॉरगेट दैट सर्जन। हम अलग ढंग से जो भी काम करते हैं, कुछ अलग चीज से करते हैं, समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डनरी, नॉट एक्टिंग आउट ऑफ मेमोरी। मेमोरी से काम करने के अलावा अगर आप कुछ अलग तरीके से करते हो, तो वो विस्मय में, वो वृत्ति के, स्मृति भी एक वृत्ति है, वो वृत्ति को पार करके हमें विस्मय में ले जाता है। एक होमवर्क भी था हमारे पास, अगर खाना भी बनाना है तो कुछ अलग ढंग से करें। You're cutting an apple, you're cutting a tomato, do something different. क्या हो जाता है इससे? स्मृति जरा कम हो जाती है और the seer becomes, है ना, the seer comes to, we start going again and again, all at it अभ्यास। ये सब अभ्यास। आज गुरुजी ने हमें बताया ये दो रास्ते जो है, एक रास्ता है अभ्यास का, एक रास्ता है वैराग्य का। दोनों में क्या अंतर है जरा हम अच्छे से समझ लेते हैं इसको, क्या है ये। तो गुरुजी बताते हैं अभ्यास के बारे में क्या बताते हैं हमें, कि इसके कुछ शर्त भी है क्या, कि इसको हमें ऐसा बताते हैं ना, दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेविता, फिर दृढ़ भूमि बन जाती है वो। तो क्या, यानी यू हैव टू प्रैक्टिस दिस कंसिस्टेंटली। दीर्घ काल मीन्स लॉन्ग टाइम, निरंतर माने विदाउट अ ब्रेक, एंड सत्कार सेवितो, सत्कार सेवितो मतलब क्या, विद अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, विद अ सेंस ऑफ रेवरेंस, विद अ सेंस ऑफ ऑनर। तो अगर मानो हम अभ्यास भी कर रहे हैं, जैसा हम साधना करते हैं सबको, लेकिन अगर ये तीन कंडीशन से नहीं कर रहे, तो वो अभ्यास में जरा गड़बड़ हो गई है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो अभ्यास का रास्ता भी बहुत अच्छा है, करना चाहिए कुछ हद तक। देखो 20-25 मिनट, यानी फॉर अस, आई एम टॉकिंग अबाउट एन आर्ट ऑफ लिविंग डिवोटी, फॉर अस गुरुजी मेड इट वेरी सिंपल। कहते 20-25 मिनट साधना, 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका ओम, शाम में कम मेडिटेशन करो, सहज करो। ये मेड इट वेरी वेरी सिंपल फॉर अस। वरना पता है ना, लोग बहुत कठोर तपस्या करते हैं। वो बता रहे थे ना, गड्ढा खोद के फिर खाना कम करो, पानी कम करो, सांस कम करो, गड्ढे में बैठो, क्या 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 क्या, और उसके बाद भी वो परिणाम मिले या नहीं उसका गारंटी नहीं है। तो रियली ठीक है, अभ्यास का बहुत महत्व स्थान है। इतना हम जो हमें मिला है अभ्यास करने के लिए, जो हमें प्रैक्टिसेस मिली है, वो हमको करना चाहिए, रोज आना करना चाहिए, और सत्कार सेविता से करना चाहिए हमें ये। फिर बताते गुरु जी, जैसा हम ये सत्कार सेविता से करते जाते हैं, तो क्या हो जाती है, हमारी जो चेतना है, कि गिव अ नाइस एग्जांपल, कि वो स्तंभ जैसी बनने लगती है। इट स्टार्ट्स लाइक अ पिलर, यू स्टार्ट गेटिंग सेंटर्ड ओवर देयर। अभी क्या हो रहा है, हमको लगता है ये जो शरीर है, शरीर ठोस है और चेतना जरा टूटी हुई है। लेकिन ये अभ्यास करने से, बार बार दृष्ट स्वरूप में जाने से, बार बार ये करने से चेतना मजबूत हो जाती है। फिर लगता है शरीर शरीर हवा जैसे है, इट्स ओके, वी डोंट गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट, लेकिन दैट्स वो वो स्थिति को जाने के लिए वी नीड दैट सत्कार सेविता। अच्छा, एंड देन ही आल्सो सेज अस, गिव्स अस अ वेरी गुड क्लू। फिर कहते हैं, इसलिए हम जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो जरा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। What is the kind of company that we are sitting in? That is surely going to have an effect on us. We are sitting with people who are, शायद कभी कोई कोई गुस्से में बैठा है, कोई ग्रीड को लेके बैठा है, कोई काम वासना को लेके बैठा है, when we are in this company, that starts affecting our चेतना। इसलिए कहा गया है, सत्पुरुषों के सत्संग में रहो, सत्पुरुषों की सेवा करो, be with knowledgeable people, be with the ज्ञानी। Even if you have to do the seva, it is still worth it. अगर आपको कोई, जैसा आपको कोई सत्पुरुष मिलते हैं, उनके इधर सिर्फ सेवा करना है, सिर्फ झाड़ू लगाना है, सिर्फ कपड़े धोना, it is still worth it spending time in his energy field, in that zone, rather than sitting with people who are going to keep gossiping all the time.
it is good for our progress. मिलते नहीं है सत्पुरुष, मिलते नहीं है ज्ञानी, अगर मिल गए हैं उनके सेवा में लग जाओ, get attached to them, join them. गुरु नहीं मिलते, अभी मिल गए हैं ना, पकड़ के रखना गुरु जी को. Hold on, don't let anything come in the way over there. अच्छा, फिर बताते हैं गुरु जी, अभी वैराग्य के बारे में बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं. आई होप यू बीन एबल टू रजिस्टर दिस. क्या बताते हैं? देखो, बताते हैं वैराग्य भी दो तरीके का है. क्या? एक तो जो ऑब्जेक्ट्स है, जो इवेंट्स है, पीपल है, उसको हम डिटैच हो जाते हैं, हम वस्तुओं से डिटैच हो जाते हैं और अपने अंदर आने लगते हैं. वो दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज वेरी वेरी नाइस. वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अभ्यास. वो हमें बार बार करना है. लेकिन दूसरे तरीका के क्या है? दिस इज वेरी सटल व्हाट इज सेड. दूसरे तरीके का वैराग्य क्या है? व्हेन सडनली यू जस्ट, ये हमें एग्जांपल देते हैं गुरुजी. देखो, ये सब चीजें करने के लिए हमें प्रैक्टिस है, लेकिन जब हम अपने प्रेमिका को देखते हैं, उसके लिए कोई अभ्यास लगता है क्या? इसे ना लव एट फर्स्ट साइट, वो देखते ही लगता है ओह दिस इज इट, है ना. इसके लिए कोई अभ्यास की जरूरत नहीं. तो अभ्यास का जरूरत हमें कभी पड़ा जहाँ थोड़ा जरा मन अटका हुआ है, थोड़ा डिफिकल्टी है, हमें पसंद नहीं है, जरा एफर्ट डालने पड़ेगा. लेकिन ये दूसरे तरीके क्या बताते हैं गुरुजी? जब हम प्रेम में पड़ जाते हैं, यानी जब ईश्वर के तरफ प्रेम, जब गॉड के तरफ प्रेम, जब ये इन्फिनिटी के तरफ प्रेम, जब गुरु के तरफ प्रेम, इसमें पड़ जाते हैं, तो वैराग्य ऑटोमेटिकली हो जाता है. फिर ये छोटे छोटे चीज हमको बॉदर नहीं करते. इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज परम वैराग्य. ये सहज वैराग्य हुआ, ये एकदम विदाउट एनी एफर्ट. बस वंस यू आर कॉट अप, वंस वो एक मानो एक तरह का ये भी, इसको आप नशा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये नशा जैसे एग्जाम्पल है, उसके बराबर है. जैसे ये वंस यू आर सोक्ड इन दैट ब्लिस, दैट of the guru, of the infinite, of God, then the small small things don't even cross our mind. इसने ये कहा, उसने I want this, I want that, all this feels meaningless. Then अच्छा देखना, you will see this in art of living circles. ये लोग, बाकी के लोग समझ नहीं पाते, अरे ये आर्ट ऑफ लिविंग के लोग मिलके गुरु की बात करते रहते हैं बार बार. ये सच बात है. ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जब एक बार वो रस आ गया ना, बाकी ऑल दैट जस्ट ब्रेक्स अवे. फिर वो मूवी देखने का जो अटैचमेंट था, वो पब जाने को जो अटैचमेंट था, वो बाहर जाके अटैचमेंट था, इसका अटैचमेंट टूट ही जाता है विदाउट एनी अभ्यास से, जो निकल जाता है अपने आप. व्हाट इज द क्यू फॉर अस? some intelligence over there, there's a lot of wisdom over there. क्या आसान तरीका? देखो, अभ्यास का रास्ता बहुत अच्छा है, करना चाहिए, हमें भी सबको करना है, लेकिन उससे सहज रास्ता क्या है? भक्त बन जाओ, ईश्वर के भक्त बन जाओ. दिस इनफाइनाइट क्रिएटर, ये जो कौन, दिस इनफाइनाइट क्रिएशन एंड इट इज विद इन मी, इसके भक्त बन जाओ. जब भक्ति भाव में आ जाते हैं, ये सहज हो जाता है, ये सब छूट जाता है. एक मिसाल भी दिया नहीं गुरुजी ने हमें, क्या आप एक दिया जलाए हो और द सन राइजेस, सूरज जब उभर आया है, अब इसके कुछ, इसका ये दिया कि कुछ महत्व है क्या? नहीं भाई, हमें तो वो चाहिए, दैट हमें वो इनफाइनाइट वाला चाहिए, बिग चाहिए हमें वो. ऐसे ही अपने मन को वहां ले जाओ, दैट इनफाइनाइट फोर्स. व्हाट इज दिस इनफाइनाइट फोर्स which has been running this universe for millions of years and for another millions of years? उसके तरफ जब जब मन जाता है ना, तो वो सहजता से वैराग्य आती है. सर, गोपियों का मिसाल देखो, गोपियों का यही हाल हुआ था. इतने अटैचमेंट में, यानी अटैचमेंट में इतने बस उसके अंदर मगन थे, तो उनको पता नहीं था, अरे अभी सजना ढजना है, क्या करना है, आई वांट टू मेक अप, ये आई वांट टू लुक नाइस. दे वुड फॉरगेट ऑल ऑफ दैट. ही गिव एग्जांपल दैट पीपल वुड लीव देयर फूड, आधा खाना छोड़ देते, दे फॉरगेट टू वॉश देयर हैंड्स एंड दे वुड ऑल रश ओवर देयर. वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड. इन फैक्ट, you know, do you see this, people losing their awareness in the presence of Guruji? ऐसा मत करो आप, it is not justifying, but a lot of people can lose their awareness when, I will tell you a very quick story. This is not part of the word, you know. So Guruji had come to Bahrain,
and I was staying in one. I was living in the Gulf, but I was not living in Bahrain. So I went to Bahrain and I was staying in one of our teachers' house. She was a very very senior teacher, and then in the visit she told Guru, she invited Guruji to her house. Guruji, like, please come to our house and whatever. So Guruji agreed to come to our house. So it was a very home moment for every. Oh, Guruji is going to come to our house, and it was very exciting. So anyway, so I was also staying in that same house, so I had that advantage of being meeting Guruji again in the house. Guruji is coming through the door, right? And there was a staircase going up. So I was standing on the staircase. People were already standing at the door. I was standing on the staircase to watch all of this. अब उन्होंने क्या किया, गुरुजी का स्वागत करने के लिए एक ऐसा प्रथा होती है हिंदुइज्म में कि वो सो क्या कहते हैं, पद पूजा कहते हैं उसको, ऐसा दे वॉश द फीट, ऐसा मान लो दे वॉश द फीट ऑफ दिस ऑनर्ड गेस्ट. तो एक बड़ा थाला जैसा था उनके पास, उन्होंने वो दरवाजे के पास रख दिया. इट वाज अ बिग थाला, so that the idea was Guruji will step into the thala and she will pour some water. ऐसा कुछ तो ऐसा, this is what I could imagine this is going on. So the minute Guruji came out of the car, when he came, she put that big thing over there, and so Guruji saw, like Guruji said, नहीं, ये सब की जरूरत नहीं है. And she had an आरती plate. Guruji said, हाँ अच्छा आरती कर लो चलो. Now she did that Guruji's आरती. अब देखो सुध-बुध कैसा हम खो बैठे हैं. अब गुरुजी को अंदर आने के लिए किसी ने थाला उठाया नहीं, वो गुरुजी could not come in because it is over there. The aarti is over, and they're like, Guruji. Guruji realized nobody's understanding. You know what he did? He bent down, picked up the thala, gave it to somebody. So many people lose their awareness in the presence of Guruji. ये एक तरह का ऐसा नहीं करना चाहिए. I'm not justifying it, but this is a natural sequence of events. What happens is when you are so involved in that one thing that everything else loses meaning. All this puja part, ये भी है ना निकल जाता है, ये सब निकल जाता. Why? Because you are so engrossed in that one thing. ये किस्से तो बहुत सारे डिवोटीज के साथ है, बहुत सारे टीचर्स के साथ. इस plenty of such stories. Yeah. Anyway, so coming back to this, so ये सहज वैराग्य is भक्त बन जाओ, योगी भी बनो, ज्ञानी भी बनो, बट उससे बड़ा क्या है, भक्त बन जाओ. इट हैपेंस, ऑल दिस स्टार्ट्स हैपनिंग, इट बिकम्स अ नेचुरल स्टेट. ये नेचुरली सब छूट जाता है और हम दृष्टा स्वरूप में जाते हैं. फिर इसका परिणाम क्या हुआ? अच्छा चलो, अभ्यास हो गया, वैराग्य होने से देन वी गो इनटू अ स्टेट ऑफ समाधि. व्हाट इज समाधि? नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ समाधि. देखो ये हमें अभी तक पता नहीं था, सुना नहीं था कभी. तो पहले तो समाधि का डेफिनेशन क्या है? तो धी यानी बुद्धि, समत्वम एंड इक्वानिमस इंटेलेक्ट. बुद्धि जब एकदम शांत हो गई है, बुद्धि में जब इक्वानिमिटी आ गई है, उसे कहा जाता है समाधि. फिर गुरुजी बताते हैं 4 अलग अलग प्रकार के समाधि है. तो एक तो क्या है? सतर्क समाधि. सतर्क समाधि माने क्या हुआ? तर्क आप जानते हो ना, तर्क माने क्या? डिस्कशन, यस नो, राइट रॉन्ग ना. सतर्क माने क्या? एस्टैब्लिश्ड, यानी आप चल फिर रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी जो बुद्धि है, इट इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन इन द इंटेलेक्ट. बुद्धि में कंफ्यूजन नहीं है. You know what is right, you know what is wrong, you know what you want to do. There are no questions in the mind. इसे सतर्क कहते हैं. Another example I can give you is all the art of living teachers. इस सेशन में शायद बहुत सारे टीचर्स भी होंगे, and if you sit with the teachers, they will share this with you. जब आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स जब ये हैप्पीनेस प्रोग्राम सिखाते होते हैं ना, दे गो इनटू सतर्क समाधि. क्यों? द इंटेलेक्ट नोज, इट नोज विदाउट अ क्वेश्चन. कोई सवाल ही नहीं है कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट. दे आर डिस्कसिंग विद एवरीबडी, बट दे नो क्या भाई, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये लग रहे हैं, ये आग और पानी ये ऑपोजिट है, मुझे पता है, बट मुझे ये भी पता है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. ये सतर्क समाधि कैसा है? You are doing your work, you are doing your business, but the mind, the intellect especially, there is no questions over there, there is no confusion. You are sure, मुझे पता है यही रास्ता है. That is सतर्क समाधि. फिर एक दूसरा समाधि जो बताते हैं वो निर्वितर्क. तो तर्क वितर्क के निर्वितर्क माने क्या? अब राइट रॉन्ग भी नहीं है, मन भी नहीं है, कुछ पता नहीं है, शरीर कुछ ही नहीं, मन पूरा अंतर्मुखी हो गया. द माइंड इज टोटली गॉन इन वर्ड्स.
It does not even bother about discussing. It is not even interested in it. It is not even aware of the breath. It is not aware of the body. This kind of samadhi we generally experience. This is one of the kind of samadhis we experience in the Sudarshan Kriya also. पता ही नहीं चला ना, there is no more dialogue going on in the head. ना सर अंदर कोई dialogue है, ना right wrong, ना good bad, ना कुछ नहीं है, बस आप आनंदित हो. You are only in a state of bliss. That time you're not worried, my leg is paining, my this is nothing. You understand? निर्वितर्क समाधि. It's very very brilliant to know this. फिर गुरु जी बताइए ये समाधि में क्या होता है. यहाँ पर प्रज्ञा पुष्ट होती है. प्रज्ञा माने इंट्यूशन. Once a person has gone into the state of samadhi, what happens with a lot of intuition? Why? Now you've gone this year. हम दृष्टा में चले गए. यहाँ पर intuition comes over here, good thoughts comes over. There is samadhi again. Another way that Guruji described is what? There is no lack. कोई कमी का आभास नहीं होता है हमें, कोई कमी महसूस नहीं होती है. तृप्त. अगर समाधि से हमें तृप्त महसूस तो तृप्ति से भी समाधि महसूस कर सकते हैं. The importance of being तृप्त, not coming from a space of lack, coming from a space of contentment, not coming from a space of desire. हम ध्यान भी करने जाते हैं ना, तो वो मुझे समाधि चाहिए, वो भी एक डिजायर है. वो डिजायर को भी छोड़ के बैठना है, तृप्त होकर बैठना चाहिए. This moment is complete. This moment is whole. This moment does not need any addition. This moment is beautiful, complete the way it is. That's it. ऐसा लेके बैठ जाओ, है ना. अच्छा, another key point over here is ये जो कमी है ना, ये कमी कहाँ पर हमें महसूस होता है? ये इंटेलेक्ट में ही महसूस होता है. ये बुद्धि बोलती है नहीं ये बराबर नहीं, वो होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये और चाहिए. It's only the intellect which gets caught up in a lack. In lack, in कमी, ये बुद्धि. समाधि मतलब क्या? ये बुद्धि में ही समत्वम आ जाए. तो कुछ देर के लिए ये बुद्धि को बंद करे. इसे कहते ध्यान. हम कहते ना ध्यान. ध्यान का भी अर्थ क्या हुआ? ध्या मने वही बुद्धि. ध्या ध्या ध्यान न मीन्स नो. ध्या न, ये बुद्धि नहीं इस्तेमाल करे, वही हुआ ध्यान. बुद्धि में समत्वम आ गया, यही हुआ समाधि. बुद्धि में कमी का महसूस नहीं होना चाहिए. टू मच ऑफ डिजायर, ये राग द्वेष, ये अटैचमेंट, ये क्रेविंग, दिस टेक्स अवे फ्रॉम. हम राग द्वेष लेके, डिजायर लेके अगर ध्यान में भी बैठ जाए, मेडिटेशन करने को बैठ जाए, तो इट कैन नॉट लीड अस टुवर्ड्स समाधि. तृप्त होकर जब बैठ जाए, तृप्त होकर हम अपना डेली काम भी करें, दैट इज आल्सो वो सतर्क समाधि हुआ. Right over there. So it's very beautiful to understand all of this, no? अच्छा, ये फिर गुरुजी बताते हैं कि ये अभ्यास से भी पॉसिबल है क्या? अभ्यास से क्या? खाने को कम कर दो, पानी को कम कर दो, सांसों को कम कर दो, गड्ढा खोद के बैठ जाओ. ये बहुत, ये धीव्र काल, कठिन तपस्या इसको बोलते हैं. कठिन अभ्यास करके पॉसिबल है, बट लेकिन व्हाट इज द यूज? What are we trying to arrive at? गुरुजी कहते हैं इससे चलो कुछ हासिल हो सकता है क्या? सिद्धि हासिल हो सकती है, किसी को श्राप देना. आई लव गुरुजी सेंस ऑफ ह्यूमर. किसी को अगर श्राप देना, ये सब हासिल हो सकता है. वो तृप्ति का हासिल, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ओवर देयर. तृप्ति हासिल हो सकती है क्या? भाई अपने शरीर को सजा देके तृप्ति हासिल कर सकते हो क्या? यानी कर कुछ लोग करते भी है, शायद उनका वो मार्ग है, कोई बात नहीं. तो हम जब ये पतंजलि महर्षि जी का ज्ञान समझते हैं, समझ में आता है, तो हमें लगता है कि यार मेरा जो मार्ग है, ये जो मार्ग है, ये तो 100% राइट. इट इज एंडोर्स्ड बाय महर्षि पतंजलि हिमसेल्फ. इट इज नॉट एंडोर्स्ड बाय एनी ट्रायल एंड एरर. इट इज एंडोर्स्ड बाय महर्षि जी हिमसेल्फ. ये सहज समाधि, भक्त बन जाओ, तृप्त हो जाओ. तृप्त होने से ही हमें दृष्टा मिलती है, दृष्टा स्वरूप में आ जाते हैं. फिर और एक बताया गुरुजी ने, अस्मिता समाधि. अस्मिता के बारे में कम बताया गुरुजी ने, सिर्फ ये कि ये मैं हूँ और इसी में मैं मस्त हूँ.
नो क्वेश्चंस आस्क्ड ओवर देयर। मुझे ऐसा होना चाहिए था, मुझे बस मैं हूँ, दैट्स इट। अपने कहते हैं ना मस्त मलंग, जो अपने हाल में मस्त है, मस्त मलंग, उनके लिए एक वर्ड भी है ना ऐसा कुछ। मैं हूँ, दिस इज इनफ, दैट्स इट। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, ये जात का हूँ, ये प्रांत का हूँ, ये ठीक है, वो ये कुछ कंफ्यूजन है, मैं हूँ बस, that's it। और फिर चौथा गुरुजी ने बताया वो आनंदित समाधि, दैट इज इवन फार, यानी मैं नहीं भी हूँ, बस मैं आनंदित हूँ। That is the fourth. He spoke only few lines about the last two, and he spoke a lot about this too. Yeah. So guys, we have to do a self check. हम कहाँ पर अटके हुए हैं? भक्त बनो, सहजता से हो जाओ. If anybody is imagining, you know what, I am sharing my personal opinion. अगर कोई समझ रहा है मैं ऐसी तपस्या करूंगा, मैं ऐसा मेडिटेशन करूंगा, ऐसा ध्यान होके फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, ओके, ठीक है, नथिंग मोर टू से। आई विल टेल यू शॉर्टकट क्या है। भक्त बन जाओ, हमको जो भी प्राप्त होने वाला है वो कृपा से प्राप्त होने वाली है हमें। यू कैन अटेन द हाईएस्ट जस्ट थ्रू ग्रेस, थ्रू, आई डोंट नो व्हाट टू से, वी कैन अटेन द हाईएस्ट जस्ट बाय फॉलिंग इन लव। व्हाई वुड यू नॉट वांट टू डू दैट? हम कोई और क्यों उपाय इस्तेमाल करना चाहते हैं? Just being in that state of love. A bhakt is in a state of love. This we are not talking of the love between girlfriend boyfriend love वाला love नहीं, वो जो है ना, बस जिनको जानते भी नहीं है उसके उसके प्रेम में जब पड़ जाते हैं तो ये सच्चा प्रेम है। जिसको देखा भी नहीं है, बस महसूस किया उसको और उसके साथ प्रेम में पड़ गए, दिस इज अनकंडीशनल लव। ये सच्चा प्रेम है। जानना बस नहीं जानते, there it is there like this, है ना। सो आई थिंक दिस इज ब्यूटिफुल फॉर टुडे। ये आज के लिए फिर आप चेक कर लो क्या, विच स्टेट आर यू, विच कौन सा मार्ग किस तरह से कर रहे हो, है ना। यू जस्ट डू अ सेल्फ चेक ऑन यू एंड जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ किस तरह से वी वांट टू गो फॉरवर्ड, दृष्टा में किस तरह से जाए। सो गाइस, इनफ ऑफ मी टुडे, आई हैव स्पोकन इनफ। इज देयर एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चंस आए हैं क्या? Yes, Bhaiya, there are questions. हाँ जी। So amazing knowledge, become bhakta, everything falls into place. So we are living that actually. We are fortunate, Nishan. I tell you what, Yeah. we are fortunate to be experiencing that. ये बहुत सारे लोगों के नसीब में नहीं हुआ है। जिनके नसीब में हुआ है ना, they are fortunate people. Really, I'm living every word which you have said today. It's so true. The first question is, if Vairagya is not about leaving your home, leaving materialism, and detaching from your loved ones, then why Gautam Buddha left his house, comfort, and relatives? When Lord Buddha, when he attained enlightenment, तो the सबको story पता है, he left his house and he left his house in the middle of the night, and वो गृहस्थ थे, he left his house, his family, his kids, and he was a prince, वो सब छोड़ के चले गए। कई साल जंगल में रह के फिर उनको आत्मज्ञान हुआ, उनको जो आत्मज्ञान हुआ या जो जो उनको इनलाइटमेंट प्राप्त हुई, बट व्हाट डिड ही डू आफ्टर दैट, वो सोचने की बात है। आफ्टर दैट व्हाट डिड ही डू? ही केम बैक टू हिज हाउस, है ना। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड, so he comes back to his house, he knows his wife's name was Yashodhara. He knew that his wife would is very angry on him, very upset, क्योंकि जो उन्होंने काम किया वो एक महीने में आज के ऐसा देखे गए तो वो धोखा ही था कि घर छोड़ के चले गए आधी रात में, परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के चले गए। He knew his wife would be very angry, so anyway he comes back to the house, and in his defense, when he comes and he meets her, when they stand face to face, in his defense he speaks one line. He says, मैं वही सिद्धार्थ नहीं हूँ जो घर छोड़ के चला गया था। When he left his house, he was Siddharth. He was known as उनका नाम सिद्धार्थ था। After enlightenment, he took up sannyas and all, and he became Gautam. He says, मैं वही सिद्धार्थ नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़ के चला गया था। So his wife, she says, हाँ सुना है, I've heard that you have attained God, enlightenment and आत्मज्ञान, ये सब तुमको मिला है, सुना है कि तुम बुद्धा बन गए हो। He says, yes.
Then she tells him something very beautiful. She asks him a question. पूछते हैं उनको, she says, तुमको ये पहाड़ों में जाके, ये जंगलों में जाके तुमको जो भी प्राप्त हुआ, क्या तुम वही ईश्वर, वही ज्ञान इस घर में रह के मेरे साथ प्राप्त नहीं कर सकते थे? What did Buddha do? He put his head down. He said yes. And he said, वो जो घर छोड़ के चला गया था वो अज्ञानी सिद्धार्थ था, ये जो घर लौट के आया है ये ज्ञानी गौतम बुद्ध है. Getting the point? है ना? तो ये जंगलों में जाना, घरदार छोड़ना ये नहीं है, वो ज्ञान होने के बाद आ जाता. Okay, come on. Do you have any other question, Nishan? One more question, yeah. So, if Vairagya is about following the middle path, then why Art of Living is making so many Swamijis? वो देखो हैप्पीनेस कोर्स में ये आपको बात सिखाते हैं, प्रेयरफुल क्वेश्चनिंग. ये अभी हो गया इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग, है ना? क्या भाई आप एक साधारण सवाल पूछ लेते थे, आर्ट ऑफ लिविंग में जो स्वामी जी बने हैं उनका रोल क्या है, वो क्या करते हैं, तो आपको जवाब मिल जाता था. लेकिन if art of living is following the middle path, then why art of living is making Swami, you know, this is intellectual. For now I have to give you an intellectual answer so that you get convinced. देखो आप जो पहली बात तो आप जो मिडिल पाथ बोल रहे हो, देखो आपको कोई भी चीज का मिडिल चाहिए, अगर मिडिल पॉइंट चाहिए, हाउ डू यू नो दिस इज द मिडिल पाथ, मिडिल पॉइंट, सेंटर पॉइंट? To know the middle point of something, you have to first know the extremes. Am I right? भाई ये मेरे सामने जो टेबल है, ये टेबल का सेंटर पॉइंट मुझे जानना है, तो I have to know where the extremes are, then I can come to the middle path. अब let us understand life. Let us understand what is life and let us see the extremes. Okay? तो अगर आप what is one extreme of life? यही हम जो कर रहे, जो हम शादी करते हैं, गृहस्थ करते हैं, गृहस्थ बन जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, तो there is in-laws, then there is obligations, फिर there is job, there is business, life is thriving, your children are born, then you have to take, you know, educate them, train them, educate. This is life is thriving over here. This is one extreme of life. What is the second life extreme of life? दूसरा extreme क्या हुआ? Is death, poverty, starvation, disease, sickness. These are two extremes of life. One is all the wealth and thriving and prosperity and relationships and marriages and obligations and all of those things. And the other is what? Misery, poverty, starvation. अब इन दोनों के बीच में स्वामी आके खड़ा हो गया है. A Swami is not starved and in poverty and he's not, you know, deterioration, decadence में नहीं है वो. और at the same time he is not, वो अपने आप को ये सब obligations इन सब चीजों से भी छुटकारा पा. Actually a Swami is walking the middle path. एक स्वामी मिडिल पाथ में है, यहाँ से भी दूर है, यहाँ से भी दूर है, दोनों के बीच में ना तो कोई ऑब्लिगेशंस है, ना कोई, और यहाँ पर ना कोई डेथ, पावर्टी, डेकेडेशन कुछ नहीं है. यहाँ दोनों. A Swami is actually walking the middle path. आपने क्या किया मेरे भाई? आपने खुद को समझा आई एम मिडिल पाथ, दिस पीपल आर ऑन द एक्सट्रीम. ये ऐसा नहीं होता है. मिडिल पाथ जानने के लिए आपको एक्सट्रीम जानना होगा, फिर उसके बाद मिडिल पाथ की पता चलेगी. राइट निशांत? एनीथिंग एल्स? No, bhaiya, enlightening answer.